سفلی کے گندے علم کے ماہرین کے غلیظ ترین اور حیرت انگیز کارنامے، مستقبل میں جھانکنے والی ان قوتوں کا ذکر جو انسان کو انگشتیں بندھا کر دیتی ہے، کسی ایسے علاقے کی تہذیب کی حیرت انگیز اور ہولناک رسمیں جو بدن کے رونگٹے الف کر دیتی ہیں، جادو ٹونے جنتر منتر اور ٹوٹکے کے ناقابل یقین چمتکار، خدا کے کسی برگزیدہ بزرگ اور مجذوب کے کرشموں اور معجزوں کی تفصیل، ہولناک پر اسرار اور ناقابل یقین ماحول کے پس منظر میں لکھی جانے والی خوفناک کہانی رقص ابلیس۔ بات مطلب کی نہ ہوتی تو میں تمہیں مجبور نہ کرتا، اور اس نے خشک آواز میں کہا۔ پولیس کی طرح ہمارا کاروبار بھی مخبروں کی اطلاعات پر چلتا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو۔ برا مت ماننا میری جان، اور ہم مسرتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں؟ شبیر نے جز بوجھ ہو کر کہا، اور جس شخص کے اشارے پر تم نے مجھے بلایا ہے، کیا اس نے تمہیں میری ضمانت نہیں دی؟ گھبراؤ نہیں، اور ہم تمہارے ارام کا پورا خیال رکھیں گے، اور اگر میں تمہارا مہمان بننے سے انکار کر دوں تو مجھے مجبوراً تمہاری ضمانت ضبط کرنی ہوگی۔ اور اسلم ڈنکا کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے اچھڑتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پلٹ کر دوبارہ چلا گیا، اور اس بار گن مین باہر جانے کے بجائے دروازے پر ہی مسلط رہا۔ رات کو سونے سے بیشتر مجھے نیند کا انجیکشن دیا گیا، اور اس کا مقصد مجھے آرام پہنچانا نہیں، گہری نیند سے دوچار کرنا تھا۔ ڈاکٹر شبیر کو وہ رات وہیں گزارنی پڑی، اور جہاں مجھے قید رکھا گیا تھا، اور اسلم ڈنکا کا وہ فیصلہ اسے گراں گزرا تھا، مگر وہ اس پر عمل کرنے پر مجبور تھا۔ غالباً کسی مخبر نے شبیر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی تھی کہ وہ اسے فوری طور پر واپسی کی اجازت دینے سے قاصر ہو گیا۔ دوسرے روز میں دیر سے سو کر اٹھا، اور میرے بازو کی تکلیف کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ شبیر نے اپنا فرض نبھانے میں کسی بخل یا بددیانتی سے کام نہیں لیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ شبیر براہ راست اسلم ڈنکا سے واقف نہیں تھا۔ رات نیند کے انجیکشن کے سبب سکون سے گزر گئی، لیکن صبح بیدار ہوتے ہی مجھے پھر نازو اور راجو کا خیال ستانے لگا۔ نازو کی کوٹھی میں گپ اندھیرے میں جو ڈرامہ کھیلا گیا، اس کی اطلاع شاید ابھی تک شیرا کو نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ حالات سے باخبر ہو چکا ہو، اور اس کے اڈے کے افراد پورے شہر میں چودھری نواز کے خفیہ ٹھکانوں کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں، اور میرے اوپر جو کچھ بیتی تھی اس کی اطلاع پا کر شیرا پرسکون نہیں رہ سکتا تھا۔ میری طرح اسے بھی نازو اور راجو کی فکر لاحق ہوگی، اور میں انہی خیالات میں گم تھا کہ دروازے پر تعینات گن مین نے دور ہی سے آواز لگا کر کرخت آواز میں کہا، صبح ہو چکی ہے لاڈ صاحب کے پتر، اور اٹھ کر چھیتی فارغ ہو لو اور کچھ زہر مار کر لو، ہمیں یہ ٹھکانہ بدلنا ہے۔ کیوں؟ اور میں نے یوں ہی پوچھ لیا، اور کیا یہ جگہ محفوظ نہیں؟ بکواس نہ کرو کھوتے دے کھر، اور سیدھی طرح اٹھ کر جا، ورنہ مجھے انگلی ٹیڑھی بھی کرنی بھی آتی ہے۔ اور میں نے اسے بحث مناسب نہیں سمجھی۔ کاٹ کباڑ کے عقب میں ایک انتہائی مختصر سی جگہ ضروریات کے لیے بنی ہوئی تھی، اور اس کی نشاندہی بھی گن مین نے کی۔ میں بمشکل ضروریات سے فارغ ہو کر واپس اس تخت پر آ گیا، اور جس پر ایک پھٹی پرانی دری بچھی تھی۔ گن مین کی ٹھکانہ تبدیل کرنے والی بات میرے لیے خاصی اطمینان بخش ثابت ہوئی، اور اس ایک مختصر سے جملے نے مجھے یقین دلا دیا کہ شیرا کی پارٹی کے افراد حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہی ہو، لیکن قید تنہائی میں انسان اپنی یکسوئی کو بلانے کی خاطر اسی قسم کی قیاس آرائیوں سے کام لیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرا مختصر سا ناشتہ آ گیا، اور میں نے زندہ رہنے کی خاطروں سے مجبوراً زہر مار کر لیا، اور ناشتے کے بعد وہ رائفل برادر چہروں کو نقاب میں چھپائے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے اشاروں سے مجھے اٹھنے کو کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ ہو گیا، اور اسٹور روم سے باہر نکلتے ہی مجھے وہ زینے نظر آ گئے جو اوپر کی سمت کو جا رہے تھے، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ مجھے کسی مکان کے زمین دوز حصے میں رکھا گیا تھا۔ زینوں کو طے کرنے کے بعد میں ایک کشادہ حال میں پہنچا جو ساز و سامان کے اعتبار سے کوئی موٹر گیراج لگ رہا تھا، اور وہاں دو رائفل برادر اور بھی موجود تھے، لیکن ڈاکٹر شبیر اور اسلم ڈنکا نظر نہیں آ رہے تھے۔ گیراج میں ڈبلیوری وین ٹائپ کی ایک
बंद गाड़ी मौजूद थी और एक नकाब पोश ने उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने एक सरसरी नज़र से इतराफ़ का जायज़ा लिया और फिर वैन के अकबी हिस्से में बैठ गया। मेरे साथ 3 नकाब पोश राइफल बरादर और भी अंदर आ गए और फिर दरवाजे को बंद कर दिया गया और उसके बाद शटर उठने और इंजन स्टार्ट होने की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी और फिर वैन हरकत में आ गई। मैं खामोशी से आने वाले लम्हात के बारे में गौर करने लगा और वैन के अकबी हिस्से में छत से मिली हुई जो जालियाँ लगी थी उनमें से हवा और रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर से बाहर का जायज़ा नहीं लिया जा सकता था। तीनों राइफल बरादर पूरी तरह मोहतात थे और अभी तक उनमें से किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की थी और शायद उन्हें ऊपर से यही अहकामात मिले थे कि सिर्फ अपने काम से काम रखा जाए। वैन का सफ़र तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और फिर वैन बाहर से वैन के दरवाजे पर दस्तक दी गई तो एक नकाब पोश ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। मुझे दोबारा राइफल की नाल से नीचे उतरने का इशारा किया गया और मैं बाहर आया तो खुली फिजा में हवा के फरहत बख्श झोंकों ने मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाया और वो एक छोटी सी मगर दीदा ज़ेब रहायशगाह थी। लेकिन कबल इसके कि मैं बैरूनी हिस्से का पूरी तरह जायज़ा लेता, मुझे हाथ थाम कर इमारत के अंदर ले जाया गया और चारों राइफल बरादर मुझे घेरे हुए थे। एक बड़े हाल से गुजर कर मुझे एक छोटे कमरे में धकेल दिया गया और ये किसी की ख्वाबगाह थी और जिसे औसत दर्जे के सामान से बड़े सलीके से सजाया गया था। और मुझे इस बात पर हैरत थी कि अभी तक उन लोगों ने मुझे हाथ पैर बांध कर बेबस करने की कोशिश नहीं की थी। ख्वाबगाह में मेरे साथ कोई राइफल बरादर अंदर दाखिल नहीं हुआ और मैं खामोशी से आरामदा बिस्तर पर बैठ गया और कमरे की सजावट में जो फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल किए गए थे वो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं थे। अलबत्ता दीवार पर जो 3-4 तस्वीर फ्रेम में आवीज़ा थी वो खासी हैजान खेज थी। इस किस्म की नीम उरियाँ और फैश तस्वीर की मौजूदगी में मुझे फौरी तौर पर यही ख्याल गुजरा कि वो कमरा किसी उबास शख्स की मलकियत रहा होगा। हो सकता है कि वो पूरी इमारत ही किसी ख़ास मकसद के लिए ज़ाहिर इस्तेमाल हो और लेकिन मुझे वहाँ किस लिए लाया गया। बड़ी देर तक मेरे दिल में मुख्तलिफ सवालात उभरते रहे और फिर दरवाजे के खुलने की आवाज़ उभरी तो मैं संभल कर बैठ गया। मैंने अपनी पूरी तवज्जो दरवाजे की सिमत मुंतकिल कर दी और मेरा ख्याल था कि अब मुझे किसी नई आफताब से दो चार होना पड़ेगा और मुझे उनसे किसी बेहतर सलूक की तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने चौधरी नवाज को मौत की घाट उतार कर उनके धंधे में अफरा तफरी पैदा कर दी और फिर मुराद शाह भी मेरे दखलदार नामाकलूत की वजह से काम आ गया था और जो लोग नाजरीन पर दांत जमाए बैठे थे उनके दरमियान 2 बड़ों के कत्ल ने ज़रूर खुलबली मचा दी होगी। असलम डंका ने भी डॉक्टर शबीर से यही कहा था कि वह मुझे आसान मौत नहीं मारेगा और वो यकीनन मुझे अज़ियतें देकर आहिस्ता आहिस्ता किश्तवार ख़त्म करने के ख्वाह थे। उनकी जगह मैं होता तो शायद मेरा रद्द अमल भी उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना होता। अब मोहब्बत और जंग और इंतकाम की सूरत में हर बात जायज़ होती है और मुझे अपनी ज़िंदगी से अब कुछ ज़्यादा लगाव भी नहीं था। नादो की मोहब्बत ने मुझे जीने की आस दिलाई और उसके अलावा मुझे अपनी बर्बादी के कुछ पिछले हिसाब भी बेबा करने थे और मेरी नज़रें दरवाजे पर मरकूज़ थीं। मेरे ज़हन में असलम डंका का मनहूस तस्वर था, लेकिन खिलाफ तवक्का जब मैंने एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम खातून को अंदर दाखिल होते देखा तो चौंके बगैर न रह सका। उसके जिस्म पर जो लिबास था वो उस लिबास से कुछ मुख्तलिफ नहीं था जो मैं फ्रेम में लगी तस्वीरों में देख चुका था। वो मुजस्समे क़यामत थी और उसके गुदाज होंठों पर बड़ा जहरीला तबस्सुम मचल रहा था और किसी नागन की तरह बल खाती हुई मेरे करीब आ गई। उसके अंदाज में हया और शर्मो नाम की किसी शय का एक ज़रा बराबर शैबा भी नहीं था और अभी तक पूरी तरह उसके सरापा का जायज़ा भी नहीं ले सका था कि एक कैमरा मैन अंदर दाखिल हुआ और मेरे ज़हन में यकलख्त अज़मत बेग का नाम उभरा। शेरा ने उसकी ज़ुबान बंद रखने की खातिर भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की थी और वही हरबा अब वो कुछ तरमीम और इजाफे के साथ मेरे ऊपर आजमाना चाहते थे। असलम डंका को उसका मशवरा यकीनन अज़मत बेग नहीं दिया होगा और मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। और तुम्हारे जख्म अब कैसे हैं? और नागर ने लहरा कर पूछा, और ज़्यादा टीस तो नहीं हो रही? तुम आ गई हो तो दर्द का एहसास कुछ कम हो गया। और मैंने कैमरा मैन को नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही से कहा, मुझे हैरत है कि असलम डंका को मेरी आखिरी ख्वाहिश का इल्म किस तरह हो गया।
मेरी मौजूदगी में किसी और का जिक्र मत करो। और उसने अपने जिस्म की नुमाइश में मजीद दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए सरसराते लहजे में कहा, और नाज़नीन या नादों का भी नहीं, इसलिए कि इस वक्त वो भी मेरी तरह किसी और की वाबस्तगी का सामान फराहम करने में मसरूफ़ होगी। तुम्हारी मकरू ज़ुबानों से नाज़नीन का नाम सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। और मैं संभल कर बोला, लेकिन शायद तुम उस ब्लू प्रिंट से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती जो रिमोट कंट्रोल के इशारों पर चलता है। और तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है? उसका जवाब मैं तुम्हें मैं नहीं आने वाला वक्त देगा। और उसने बेशर्मी का दामन तार तार करने में किसी शर्म से काम नहीं लिया और दराज जुल्फ़ों को एक झटके से पुश्त की जरब उछालते हुए बोली, कुमा इतना करीब हो और तशंगी बरकरार रहे, ये ज़्यादती तो है, लेकिन तुम्हें मजबूरन ये भी बर्दाश्त करना होगा। मतलब की बात करो। और मैंने हकारत से पूछा, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? तुम अब इतने मासूम भी नहीं हो कि मुझे किसी बात की वजाहत करनी पड़े। उसने मुझे घूरते हुए फिर सर्द लहजे में कहा कि मेरा और अपना वक्त ज़ाया करने की हिमाकत मत करना, और इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छे बच्चों की तरह फ़ोटोग्राफ़र की हदायत पर अमल करोगे तो जल्दी गुलू खलासी हो जाएगी, वरना क्या होगा? और मैंने हकारत से दरियाफ़त किया, बढ़ते हुए ज़ख्म को दोबारा खराश देकर ताज़ा किया जाए और उसमें सुर्ख मिर्च भर दी जाए तो कोई दरिंदा भी बिलबिला उठता है, और तुम तो फिर एक बेबस परिंदे से ज़्यादा हसीयत के मालिक नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फोटोग्राफ़र खामोशी से अपना साजो सामान दुरुस्त करने की तैयारियों में मसरूफ़ था। मेरे लिए वो घड़ी बड़ी आजमाइश की थी और बाहर 4 राइफल बरादर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में किसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा भी मेरे किसी काम नहीं आ सकता था, और कोई मोर्दा ही मुझे बचा सकता था। चहकते रहो मेरी जान। और मेरे चेहरे के तासरात को महसूस करके बड़ी बेगैरती से बोली, चेहरे पर भरपूर ज़िंदगी ना हो और रग रग से जज्बात की तर्जमानी ना हो तो तस्वीरें भी फीकी नज़र आती हैं। और तुम्हारी तरबियत यकीनन किसी शरीफ घराने में हुई है। और मैंने जहर खान से कहा, और बातें बड़ी खूबसूरत कर लेती हो। तुम्हारी मर्दम शनासी है, वरना बंदी किस काबिल है? और उसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, और ख़ासे जोहर शनास मालूम होते हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और मैं तलमलाकर उठ खड़ा हुआ, और अजमत बेग जो कुछ चाहता है वो कभी पूरा नहीं होगा, बको मत। और वह यक लख्त वो भी बफर कर बोली, और शराफत से हमारा कहा मान लो, वरना मुझे मजबूरन कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा कि तुम मेरे तलवे चाटने पर भी आमादा हो जाओगे। मैं होंठ बीज कर रह गया, और वो गलत नहीं कह रही थी, और मैं हर तरह उनके बस में था, और वो किसी और चीज़ का इंजेक्शन देकर भी मेरे होशो हवास मुअत्तल करके अपना मकसद पूरा कर सकते थे। मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता था, और मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी इज्जत पर कोई ऐसा दाग भी नहीं आने देना चाहता था कि तमाम ज़िंदगी किसी को मुंह ना दिखा सकूं। और मेरा खुदा इस बात का गवाह था कि मैंने आज खुद इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया था। मैं सच्चाई, नेकी और शराफत की राहों का मुसाफिर था, लेकिन हालात की गर्दश ने मेरे रास्ते का कांटा बदल कर मुझे गलत लाइन पर डाल दिया। और शेरा ने भी मेरे अंदर के इंसान को पहचान लिया था, इसलिए उसने मशवरा दिया कि मैं नाज़रीन को अपना कर दोबारा शराफत की ज़िंदगी अपना लूँ। और मैं इसी मकसद की खातर नाज़रीन को अपने हक़ में हमवार करने गया था, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। मुझे अपनी बेबसी का ख्याल आया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे शेरा ने जेल में जो तरबियत दी थी उसने मुझे संगलाख पहाड़ों की तरह ठोस और मजबूत बना दिया, और उसने मुझे मांगने की बजाय छपट लेने के तमाम गुर सिखा दिए थे, और मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की तालीम दी थी। लाशों पर खड़े होकर कहका लगाने का दर्द दिया था, लेकिन ना जाने क्यों इस वक्त हालात ने यक लख्त मुझे बड़ा कमज़ोर बना दिया, और मैं बदनामी किस अज़ियत से बचना चाहता था। मेरे दुश्मन जिसका एहतमाम कर रहे थे, और वह शर्मनाक मनाजर अगर फिल्म बंद हो जाते तो मैं खुद अपनी निगाहों में गिर जाता। आंखें खोले रशीद अहमद, उस बदकरदार औरत ने तहकमाना लहजे में कहा, और हमारे पास वक्त कम है। मेरा ख्याल है कि हमें दूसरा ही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। और वह शायद फ़ोटोग्राफ़र की आवाज़ थी। ठीक है, तुम ठहरो, मैं अभी इसका बंदोबस्त कराती हूँ। किसी के कदमों की आवाज़ उभरी, और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह अपने साथियों को मेरे बारे में आगाह करने का फैसला कर चुकी थी, और गुजरते वक्त का एक एक लम्हा मुझे अंदर से झंझोड़ रहा था, और मैं आंख बंद किए खामोश खड़ा किसी आखिरी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और मुझे मौत गवारा थी, लेकिन जो कुछ वो चाहते थे वो मुझे मंजूर नहीं था, और मैंने आंखें खोलकर उन्हें अपने अज़म से आगाह करने की ठान ली।
इरादे पुख्ता हों और उनमें मसरतों की लग्जत शामिल ना हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है और मौत तो बरहक है। उससे फरार होने के रास्तों की तलाश इंसान को गुमराह कर देती है और मैं गुमराही की मौत मरने को तैयार न था। फिर मेरे ज़हन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा और इस वक्त अगर वो हराफा कमरे में नहीं तो मैं फ़ोटोग्राफ़र पर काबू पाकर किसी अगले इक़दाम के बारे में गौर कर सकता था। और मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि किसी के कराहने की आवाज़ मेरी कुव्वत समात से टकराई और मैंने चौंक कर देखा। फ़ोटोग्राफ़र की पेशानी से खून का फवारा उबल रहा था और मेरे देखते ही देखते वो किसी कटे हुए तनावर शहीतर की तमानत फर्श पर ढेर हो गया। और मैंने दरवाजे की सिमत नज़र डाली जहां खान दिलावर सीना ताने और हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और उसकी निगाहों में खुशी और ज़िंदगी के मिले जुले तासरात रक्स कर रहे थे। और बेशतर इसके कि मैं कोई सवाल करता वो लपक कर मेरे करीब आ गया और मुझे गले लगाकर बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, लाडले, खुदा का शुक्र है कि तू जिंदा है, वरना खान दिलावर उस्ताद को क्या मुंह दिखाता। कुछ रैफर ब्रदर बाहर भी थे और मैंने जल्दीबाजी में कहा तो वह मुस्कुराकर बोला, मैं छत पाड़ कर नहीं टपका हूँ और उन सब का क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब तेरी बदौलत ही मुमकिन हुआ। मेरी बदौलत? अरे मैंने वजाहत चाही। हाँ। और खान दिलावर ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर तुम्हारे इशारे पर गुलाम हुसैन ने हमें इत्तला न दी होती तो शायद अभी तक हम और हमारे साथी हम तुम्हारी बाजियाबी की खातिर चौधरी नवाज के मुख्तलिफ ठिकानों पर उसके गुर्गों के बेबुखियों दे रहे होते। और गुलाम हुसैन, और मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, जिस गराज में तुम्हें पहले रखा गया था वो उसका मालिक है। और खान दिलावर ने मेरी मुश्किल आसान करने की खातिर आगाह किया, किसी ज़माने में वो भी हमारे साथियों में था, लेकिन फिर उसके शौक़ की खातिर उस्ताद ही ने वो गैराज खरीद कर उसे दे दिया और अब वो भी हमारा ख़ास आदमी है। ये और बात है कि उस्ताद ने हमें उसके गैराज का रुख करने से सख्ती से रोक दिया है और इस तरह उसका कारोबार मुतासर हो सकता था। गालबन चौधरी नवाज और उसके हाशिया बरादरों को इसका इल्म नहीं था और मैं हैरत से खान दिलावर की ज़बानी पहली बार गुलाम हुसैन का नाम सुन रहा था और मैंने ना कभी उसकी शक्ल देखी थी और ना मुलाकात की थी। उसके बावजूद खान दिलावर ने वो बात बड़े वसूख से कही थी कि गुलाम हुसैन की फ़ोन कॉल ही मेरी बाजियाबी का सबब थी। मेरे दिल में अचानक वो आवाज़ उभरी और जिसने उस्ताद शेरा की ज़िंदगी बचाने की खातिर मुझे इशारा दिया था और शेरा ने बताया था कि वो पुरइस्रार आवाज़ एक दो बार उसे मौत के मुंह से भी बचा चुकी है। इस बार उस पुरइस्रार आवाज़ ने शायद कुदरत के इशारे पर मेरी मदद की थी और मेरी आंखें फरते जज्बात से नमनाक होने लगीं। यह खुदाबंदे करीम की करम नवाज़ी थी कि उसने अपने एक हकीर और गुनहगार बंदे को रसवाई से बचा लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी और खान दिलावर ने अपनी बात जारी रखते हुए मुझे गौर से देखा, तुमने गुलाम हुसैन को किस तरह पहचान लिया? हो सकता है कि उसने मुझे राजू के साथ कभी देख लिया हो और मैंने बात बनाई। हो सकता है। और खान दिलावर ने शाने उचकाकर जवाब दिया और फिर मुस्कुराकर मैंने खेत अंदाज में बोला, काम हो गया है या हमारे आने से गड़बड़ हो गया। और वैसे चीज़ कोई अच्छी चीज़ बुरी भी नहीं थी और फाका की सूरत में तो अबाली दाल भी हलीम का मदद देती है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। और मैंने उसकी बात का मफहूम समझ कर जवाब दिया, चौधरी नवाज के गुर्गे उसी लड़की के साथ मेरी तस्वीर बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे आ जाने से उनका ख्वाब अधूरा रह गया। समझ गया। और खान दिलावर होंठ चबाते हुए बोला कि जिस तरह हमने अजमत बेग को अपनी मुट्ठी में किया था उसी तरह वो भी तुम्हें अपने जाल में फांसना चाहते हैं। और क्या तुम्हारे आदमी उस हराफा को भी मार डाला? मैंने पूछा। नहीं, वो बेकसूर है। और खान दिलावर ने कहा कि मुआवजा देकर उसे इसका घटिया काम के लिए मजबूर किया गया था और वैसे वो कोई शरीफ दादी भी नहीं और शहर में बगैर मीटर के हज़ारों टैक्सियां धंधा कर रही हैं और वो भी उनमें से ही एक है। और क्या वो अपना मुंह बंद रखेगी? उसकी फ़िक्र मत करो लाडले। खान दिलावर एक आंख दबाकर मुस्कुराया, और हम जहरीली नागनों को भी काबू करना जानते हैं। कुछ दिन हमारी फाका मस्त साथियों की रिफाकत में गुजारेगी तो अलफ की तरह सीधी हो जाएगी। और मैं खान दिलावर की बेशुमार सवालात पूछना चाह रहा था, लेकिन एक आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और मैं उसे उस्ताद की रिहाई के बाद एक अड्डे पर देख चुका था और वो बहुत जल्दी में था। हमें अब निकल जाना चाहिए। और उसने खान दिलावर से कहा, मैदान साफ हो चुका है, लाशों का क्या किया गया? सबको घसीट कर किचन में बंद कर दिया है। और उसने बड़ी सादगी से पूछा, कहो तो मिट्टी का तेल छिड़कर माचिस दिखा दूं? नहीं, ये काम उनके अपने आदमियों के लिए छोड़ दो। और चमक चलो का क्या करना है? क्या मतलब? और खान दिलावर ने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरा। ज़्यादा आदमी देखकर घबरा गई है। और उसने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, मुस्तकिल तस्वे बहा कर एक ही रट लगा रखी है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ना जाने क्या क्या बक रही है।
اور تو उसकी आवाज़दारी सुनकर पसीज रहा है और खान दिलावर ने उसे तेज़ नज़रों से देख घूरा और बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है उस पर। यह बात नहीं उस्ताद, दरअसल ज़्यादा बातें बनाने की कोशिश ना कर। मैं जानता हूँ कि तू किस कैनेडे का बदमाश है, लेकिन एक बात याद रख, अगर उस्ताद को भिनक भी मिल गई कि तेरे लंगोट की डोरी ढीली हुई होती रहती है तो नंगा करके उल्टा लटका देगा। मैं तो ये पूछ रहा था कि उसका करना क्या है, और वो एकदम राह रास्त पर आ गया। कहो तो एक गोली उसके सीने में भी तार दूं? नहीं, वो हमारे साथ जाएगी। और खान दिलावर ने जवाब दिया, और उसका फैसला सरदार ही करेगा। फिर हम बाहर आ गए और जहां फर्श इंसानी खून से सुर्ख हो रहा था और लाशें घसीटने के निशानात वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे, और इमारत के बाहर 2 गाड़ियां मौजूद थीं। मैं खान दिलावर के साथ पिछली गाड़ी पर बैठ गया और दोनों गाड़ियां आगे पीछे इमारत से बाहर निकलीं, और फिर 3 गाड़ियां और भी मुख्तलिफ समतों से आकर हमारे काफिले में शामिल हो गईं। खान दिलावर मेरी बाजियाबी की खातिर तमाम कील कांटों से पूरी तरह लैस होकर आया था, और रास्ते भर खान दिलावर और उसके साथी अपनी कामयाबी की खुशी में दुश्मनों की शान में गलीज लतीफ़े सुनाते रहे और दिल खोल कर कहके लगाते रहे। मेरा ज़हन बड़ी संजीदगी से उस पुरअसरार आवाज़ के बारे में गौर कर रहा था, और जिसने गुलाम हुसैन के ज़रिए मुझे दुश्मनों की कैद से रिहाई दिलाई थी। और वो किसकी आवाज़ थी? जो शीरा उसकी जान और उसके जानसार साथियों की पुष्ट बनाही कर रही थी। खान दिलावर इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, और दूसरी गाड़ियों में उसके साथी फतेह के सिलसिले में शोर शराबा करने में मसरूफ़ थे। मैं बदस्तूर उसी बात के बारे में सोच रहा था, और जिसने गुलाम हुसैन को अपनी मामूल बनाकर मेरी रिहाई को मुमकिन बना दिया था। वरना मैं जिस तरह मैं चूहेदान में फंस गया था, और उससे बज़ाहिर मेरी गुलो खलासी मुमकिन नहीं थी। और मेरे ज़हन में अदमत बेग के ख़िलाफ़ भी लावा उबल रहा था, और शीरा ने ना जाने किस मसलत की बिना पर उसे 2 मरतबा माफ़ कर दिया था, लेकिन वो अब भी हमारे ख़िलाफ़ दुश्मनी पर कमर बस्ता था। मुझे डॉक्टर शबीर का ख्याल भी लाहक था, और गुलाम हुसैन के गिराज में उसी ने मेरी मरहम पट्टी की थी। उसे भी अजमत बेग की अमा पर असलम डंका ने बतौर ख़ास बुलाया था, लेकिन फिर किसी वजह से मुझे उस इमारत से हटाने से बेशतर उसने डॉक्टर शबीर को वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मुंतकली के अमल के वक़्त शबीर मुझे नज़र नहीं आया था। क्या बात है लाडले? और खान दिलावर ने कुछ देर बाद मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, और क्या तुम्हें अपनी रिहाई की खुशी नहीं, या कोई बड़े जश्न का प्लान बना रहे हो? मेरे ज़ख्म इस वक्त शदीद टीसे हो रही हैं, और मैंने बात बनाने की कोशिश की, और इत्तफाक ही था कि जो अचानक गुप्त अंधेरा तारी हो जाने की वजह से मुराद शाह का निशाना चूक गया। वरना और जब 2 फरीक आमने सामने असले से लेस होते हैं तो एक की रवानगी बहरहाल ज़रूरी होती है। और खान दिलावर ने लापरवाही से जवाब दिया, मुराद शाह के मुकाबले में तुम्हारा ज़ख्म बहुत मामूली दर्जे का है। मैं समझा नहीं, और वो 1 नंबर का वालदल हराम है, और अब उसके मरने के बाद कमान असलम डंका के हाथ आ गई है। वरना मुराद शाह बड़ी कुत्ती शाह था, और चौधरी नवाब भी उसे पंगा लेने से कतराता था। मुराद शाह की मौत किसकी गोली से हुई थी? और मैंने हालात को मालूम करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि ये काम राजू की गोली ने किया होगा। और खान दिलावर ने कहा, और उस्ताद को तो ज़रूरी इतला देने के बाद नाज़रीन बेगम की कोठी या कोठे पर सबसे पहले राजू ही ने अपने 2-3 साथियों के साथ धावा बोला था। राजू इस वक्त कहाँ है? और मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। क्या उसके मुकाबले में और भी कुछ लोग काम आ गए? और मैं उस्ताद के साथ 3 नंबर के अड्डे पर था, इसलिए पूरी तफसील नहीं मालूम। खान दिलावर ने कहा, और उस्ताद को राजू और मैडम नाज़रीन से भी ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र परेशान किए जा रही थी। असलम डंका का क्या बना? और मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारे आने से कुछ देर बेशतर ही वो वही रहा होगा, और हमारी तरह उसके भी अपने ज़राए हैं लाडले। हो सकता है कि उसे हमारी इत्तला मिल गई हो और वह छुप गया हो। खान दिलावर ने दबंग लहजे में जवाब दिया, और उस्ताद की तो बात ही और है, और वह जिस महाद पर डट जाए वहाँ से तख्त या तख्ता किए बगैर नहीं टलता। लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करते, और मतहतों को ईंधन की तरह झोंक कर खुद पतली गली से भाग जाते हैं, और फिर बाद में बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर शेखियों मारने की ताक में लगे रहते हैं। डॉक्टर शबीर से तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई? और मैंने उसे तफसील सुनाते हुए सवाल किया। मेरा ख्याल है कि असलम डंका ने बाद में उसे घर जाने की इजाज़त दे दी होगी, और उस यकीन की वजह अजमत बेग। और खान दिलावर ने बड़े वसूख से कहा, चौधरी नवाज की ज़िंदगी में भी अजमत बेग उसके गिरोह की पुष्टबनाही करता था, और उसकी मौत के बाद तो सारा अमल दखल उसी का है, और असलम डंका भी उसी के बलबूते पर उछलता है। उस्ताद का ख्याल है कि वरना अब तक अजमत बेग मेरे ही हाथों खर्च हो चुका होता।
हम काफिले की सूरत में 3 नंबर के अड्डे पर पहुंचे और जहां उस्ताद शेरा किसी जख्मी नागी की तरह बल खा रहा था और इस वक्त वो बाहर बैठक में था, लेकिन इंस्पेक्टर साजिद करीमी भी वहां मौजूद था और शेरा ने आंख के इशारे से हमें खामोश रहने की हिदायत की और फिर साजिद करीमी को घूरते हुए बोला, मैंने तमाम शेर के दलालों का ठेका नहीं लिया और साले मरते हैं तो मरा करें और मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है। मैं समझता हूँ, लेकिन ऊपर वाले, साजिद करीमी ने मैंने खेत अंदाज में कहा और फिर दबी जुबान में बोला, तुम्हें तो मालूम होगा कि इन सारी बातों की पुष्ट पर किसका हाथ काम कर रहा है। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? और शेरा ने सख्त लहजे में पूछा, और क्या किसी की गिरफ्तारी करनी है? ऐसा होता तो मैं तन्हा कभी ना आता। और साजिद करीमी ने पहलू बदल कर कहा, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि रात से पूरे महकमे में खुलबली मची हुई है और हर तरफ फ़ोन खड़काए जा रहे हैं और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मेरा मशवरा है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे क्या मशवरा दोगे। और शेरा उसकी बात काट कर बोला, लेकिन इस वक्त मैं कोई मशवरा सुनने या उस पर अमल करने के मूड में नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी। और साजिद करीमी उठ खड़ा हुआ और मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते साजिद करीमी ने ख़ास तौर पर मुझे बहुत गौर से देखा और उसके तेवर बता रहे थे कि वह तमाम फसाद की जड़ मुझे समझ रहा था और मैंने इस मौका पर उसे उलझना मुनासिब नहीं समझा। और बैठक में शेरा के अलावा 2-3 अफराद और भी थे, लेकिन उनमें राजू नहीं था और शेरा किसी आदमखोर शेर की तरह पीछो ताप खड़ा था और वो गालबन मुझसे शाकी था। उसने मेरी खातर नादों से मिलने की हामी भरी थी और हालात के पेश नज़र मुझे उसकी कोठी से दूर रहने का इशारा किया था, लेकिन मैंने उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरी कैफियत भी उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना होती। साजिद करीमी के जाने के बाद कुछ देर तक मुकम्मल सकूत रहा और फिर खान दिलावर ने दबी ज़बान में पूछा, उस्ताद, मेरी इत्तला है कि अजमत बेग के कीड़े काटने शुरू हो गए हैं और इसलिए स्प्रे ज़रूरी हो गया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? और शेरा ने अपनी कानों में रोई ठोंस रखी है या आंखों पर पट्टी बांध रखी है? मेरा मतलब कुछ और था उस्ताद। और खान दिलावर ने शेरा के लहजे की तेज़ी को महसूस करते हुए कहा, वो चट पट खेलने की कमीनगी पर कमर बस्ता हो रहा है और हमने अगर बरवकत कार्रवाई न की होती तो शायद वह शीदे की तस्वीरें भी प्राइवेट हालत में उतरवा चुका होता। उस हरामी का शीदे और असलम डंका से क्या ताल्लुक है? और शेरा ने तलख लहजे में सवाल किया। असलम डंका ने उसे अपना नाजायज़ बाप बना रखा है और उसी के कहने पर चिकनी चुकोड़ी कोलट पलट करने पर आमादा किया था। और खान दिलावर ने कहा कि हम उस कंजरी को, उसका फैसला भी तुम ही को करना होगा। टांग पर टांग रखा चीर 2 साली को। शेरा गुर्राया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की खातर भी असलम डंका ने अजमत बेग के इशारे पर डॉक्टर शबीर को तलब किया था। और मैंने दबी ज़बान में कहा तो शेरा ने मुझे घूर कर शाकी नज़रों से देखा। मुझसे गलती हो गई थी उस्ताद, और मैंने जल्दी से अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। तो शेरा की पेशानी की सिलवटें दूर हो गईं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद नाजों से मिलकर उसके दिल में झांक सकूं। फिर क्या नजर आया? वो मोम की तरह पिघलने लगी थी। और मैंने जल्दी से कहा, और बिल्कुल उसी तरह और जिस तरह किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। और मेरी बातों से कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। खेल तो अब शुरू होगा मेरी जान। और शेरा ने दांत पीसते हुए कहा, और मेरे आदमी ने हराम जानवरों का शिकार कभी नहीं खेला, लेकिन अब वो साले हमारी हरी भरी खेती की तरफ रुख करने लगे हैं और उनकी खुजली बढ़ती जा रही है और उसका कोई ना कोई इलाज तो अब बहरहाल करना होगा। ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दो उस्ताद बादशाह। और खान दिलावर ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैं वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर उन सब का त्या पांचा तैयार कर दूंगा। और तुमने किसी कंजरी का जिक्र किया था, शेरा को याद आ गया। हाँ उस्ताद। और खान दिलावर ने मेरी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उस जहरीली नागन को इस मासूम गाय को खोंटे से बांधने के लिए बुलवाया गया था। कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में। तुम भी एक नज़र देख लो उस्ताद, दिल बाग बकवास नहीं। और शेरा ने उसे टोका और फिर फैसला कुन लहजे में कहा, किसी आदमी से कहकर उसे वापस उसी गंदगी में फिकवा दे जहाँ से उसे लाया गया था। और खान दिलावर उठकर बाहर गया तो मैं खिसक कर शेरा के कुछ और करीब हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। और शेरा ने करीब आने का मकसद समझकर आहिस्ता से कहा, सब खैरियत है, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। अगर जाना ही था तो मुझसे कहा होता और मैं तुझे बाजे गाजे के साथ वहां भेजता और फिर देखता कि चौधरी नवाज की नाजायज कंपनी के चोर मालिकों में कितना दमखम है और कोई तेरी तरफ टेढ़ी नज़र उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। वो राजू नज़र नहीं आ रहा और मैंने सबसे पहले राजू के बारे में खैरियत दरियाफ्त की।
तुझे सबसे पहले राजू का ख्याल क्यों आया? और उस नाज ने मैंने खेद अंदाज में कहा। और नाज़नीन भी तो खतरे में गिर गई थी। वो गरीब तो उसी दिन से खतरों में गिर गई थी जब चौधरी नवाब ने ज़नखेपन का सबूत दिया था। भूल जाए इन बातों को। और शेरा ने मुझे समझाने की कोशिश की, और जो अपना अजीज हो, दिल में घर कर चुका हो और उसके मादी को कभी नहीं खरीदा जाता, और बात से बात निकलनी शुरू होती है तो बिला वजह दिल मैले हो जाते हैं। तुम ठीक कहते हो उस्ताद। और मैंने सद आहबर का जवाब दिया। माजी की यादें भी कभी कभी जहर कातिल बन जाती हैं। उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं करेगा। और शेरा ने राजदारी से कहा, वो खैरियत से ना होती तो तुम इस वक्त इतने इत्मीनान से यहाँ ना बैठे होते। और मैंने दूसरे अंदाज में दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। शब्बीर का सलूक तुम्हारे साथ कैसा था? अच्छी तरह मिला था। और मैंने तफसील बताते हुए कहा, और खुदा जाने उसकी गुलूखरासी हुई भी या नहीं। शेरा जवाब देना चाहता था कि राजू तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और सबसे पहले मुझे देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। और फिर उसने शेरा की तरफ देखकर कहा, उस्ताद मैं तुम्हारे लिए लखलखा ले आया हूँ, और उसे सूंघने से तुम्हारे दिमाग को तकवीत मिलेगी। हकीम जानियूस ने भी इस किसी किताब में यही लिखा था कि नखलहा 1000 दवाओं की एक दवा है। कहाँ रखा है? और शेरा ने होंठ चबाते हुए पूछा। समुंदर के किनारे। ठीक है। और शेरा ने उठते हुए अपने आदमियों से कहा, और तुम सब यहाँ चौकस रहना। दूसरे अड्डों के बड़ों को भी खबर कर दो कि हथियार तैयार रखें, लेकिन बिला वजह गोलियां ज़ाया करने की जरूरत भी नहीं। और ये भी कह देना कि किसी से नजरें नीचे करके बात ना करें। और ये शेरा का हुक्म है, और बाद में जो होगा देखा जाएगा। शेरा ने अपने आदमियों को जरूरी हदायत देकर मुझे, राजू और खान दिलावर को साथ चलने का इशारा किया। और फिर हम बाहर आकर एक गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट राजू ने संभाल ली और शेरा उसके साथ अगली सीट पर जम कर बैठ गया। और मैं और खान दिलावर पिछली नशस्तों पर थे। राजू ने नखलहा का हवाला किसी मसलत की बिना पर दिया था, और दूसरों के सामने कोई खास और बहुत ही अहम बात कहनी होती तो उस्ताद शेरा के हुक्म के मुताबिक उसी तरह इशारों के नाम में बात की जाती। और शेरा ने जिस अंदाज में अपने आदमियों को हदायत की थी, उससे साफ ज़ाहिर था कि वो किसी अहम महम पर जा रहा है। और मैं जल्दी में उससे भी ये भी ना कह सका कि इस वक्त मेरे पास हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं। मुझे हर चंद के शेरा की बात से इत्मीनान हो गया था कि नाजो कम से कम दुश्मनों की कैद में नहीं। फिर भी मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की खातिर मुस्तरब था, और उसकी चीख अभी तक मेरे वजूद के नहा खानों में सदाई बाज़गश्त बनकर गूंज रही थी। मुझे वो हसीन लम्हे याद आ रहे थे जब नाजो ने पहली बार हालात से थक हार कर मेरी दीवानगी के पेशे नज़र अपने आप को तमाम अंदेशों को बलाए ताक रख कर मेरे वजूद में दम करने की ठान ली थी। और तपते हुए सहरा में शराब भी जिंदगी को उम्मीदों पर कायमो दम रखने का जरिया बन जाता है। और मैं तो फिर भी इंसान था और उसका महबूब था। वो भला कब तक मुझसे दूर रह सकती थी? और उसने सदाकतों से काम लेकर मुझे अपनी किताब ज़िंदगी के तमाम अवराक पढ़वा दिए थे, और किसी धोखे या फ़रेब से काम नहीं लिया। उसने आखिरी वक्त तक मुझसे दूर रहने की कोशिश की थी, और वो मुझे इन लम्हों में मुलव्वस नहीं करना चाहती थी जो उसकी मर्जी के बगैर चौधरी नवाब और उसके शिकारी कुत्तों के इशारों पर गुजरे थे। लेकिन जब मैंने उसकी पलकों से ढलकते आंसुओं को अपने होंठों की तशंगी में जज़ब किया तो उसे बाजुओं के हिसार में लिया तो वह जज्बों की तपश से पिघल कर मोम होने लगी थी। लेकिन मुराद शाह ने दरमियान में आकर मेरे हसीन ख्वाबों को किरची किरची कर दिया, और मैं अपने ख्यालों में गुम था कि शेरा की आवाज़ उभरी और वो राजू से मुखातब था। तुम्हें कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? तो उसने खुद को असला बरादरों की पूरी फौज के दरमियान महफूज रखा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही थे। वो जो मुराद शाह का नाम सुनकर मुझे अंदर बुलाने के बजाय खुद ही बाहर आ गया, और उसके बाद मुझे उसे सिर्फ दूर से रिवाल्वर दिखाना पड़ा था, और वो किसी मामूल की तरह ख्वाबे बेदार की कफीतों से दो चार खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गया, और उसके गार्ड मुझे से कोई वाकफ कार ही समझे थे। तुम्हारा ताक़ब तो नहीं हुआ? और शेरा ने लापरवाही से दरियाफ्त किया। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली उस्ताद, राजू ने कहा, और रास्ते भर नजरें खुली रखी हैं। और वह गाड़ी भी बदल दी जिस पर उसे साथ लाया था, और बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। फिर जब राजू ने साहली इलाके में एक दूर दराज मकाम पर बनी हुई हिट के सामने गाड़ी रोकी और हम अंदर दाखिल हुए तो मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। वो अजमत बेग के सिवा कोई और नहीं था, और जो रस्सियों में बंधा किसी गठरी की तरह फर्श पर पड़ा था, और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया था, और जिसकी वजह से वो कर्ब की हालत से दो चार था। हट के बाहर मकामी चौकीदारों के लिबास में जो लोग नजर आए थे वो शेरा के खास आदमी थे, और ये बात मुझे खान दिलावर ने बताई थी।
शेरा के साथ मुझे खान दिलावर और राजू को देखकर अजमत बेग की खौफजदा निगाहों में मौत के साए लहराने लगे थे और वह जिन हालात के पेश नजर अगवा किया गया था उसके अंजाम से भी यकीनन बेखबर नहीं होगा। शेरा के इशारे पर राजू ने उसके हलक से कपड़ा निकाल लिया और बंदिशें इतनी ढीली कर दी कि कम अज कम वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो गया और शेरा उसे बड़ी खौनकवार नजरों से घूरे जा रहा था और अजमत बेग ने कई बार बोलने की कोशिश में मुंह चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज शायद उसका साथ नहीं दे रही थी। तुम्हें शायद इल्म ना हो हरामजादे, लेकिन यह हकीकत है कि मुराद शाह का किस्सा पाक हो चुका है। और शेरा ने ठोस लहजे में कहा, मुझे मालूम है। और अजमत बेग ने बमुश्किल कहा, और मैंने उसे समझाया भी था कि खंजीर की नस्ल और शेरा गर्जा और असलम डंका ने मेरे एक साथी को अपनी कैद में रखा था और नुतफ़ा नातहकीक ने तुम्हारे इशारे पर मेरे आदमी के साथ वही तस्वीरों वाला गेम खेलने की कोशिश की थी। और क्या तुमने हरामी पन का मुजाहरा नहीं किया? अजमत बेग होंच बाका रह गया और उसने कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। डॉक्टर शबीर का नाम असलम डंका को किसने बताया था? और शेरा बड़े सर्द लहजे में बोला, मैंने। क्यों? और शेरा की बात दोबारा करख्त हो गई, और बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे सूर जैसी खाल पर। और क्या मैंने अपने आदमी को तेरे खून से हाथ रंगने को मना नहीं किया था? याद है तुझे? हाँ। और फिर तूने शेरा से टकराने की गलती क्यों की? मैं एक बार और माफ़ी चाहता हूँ। और अजमत बेग ने सहमे हुए अंदाज में कहा, और आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी और मैं असलम डंका को भी समझा दूंगा। ये दोगला है सरदार। और खान दिलावर तेजी से बोला, इसकी बातों में मत आना, और अगर ये वालदर हराम हाथ से निकल गया तो फिर हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर खड़ी करेगा। मेरा तो मशवरा है कि अब इसकी खाट खड़ी करनी ज़रूरी हो गई है। और राजू ने हकारत से खान दिलावर की तारीफ की, और जो शख्स मजहब में मिलावट करके हराम माल खींच रहा हो वो कभी राह रास्त पर नहीं आ सकता। असलम डंका इस वक्त कहाँ होगा? और शेरा ने अजमत बेग को घूरते हुए सवाल किया, मुझे नहीं मालूम। कौन सी मौत पसंद करेगा, और मर्दों वाली या हिजड़ों जैसी? मेरी बात का एतबार करो शेरा। और अजमत बेग फिर गड़गड़ाने लगा, और मैं अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरूंगा जिस पर तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के कदमों के निशान होंगे। क्या ज़मानत दे सकते हो? और जो तुम्हें मंजूर हो। असलम डंका की लाश, और वो भी 3 टुकड़ों में। और शेरा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, और उसके अलावा 50 लाख रुपए ज़र ज़मानत, और ये दोनों काम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएं। मुझे कुछ मोहलत और दे दो, इतनी जल्दी में। खान दिलावर। और शेरा ने सरसराती आवाज़ में खान दिलावर की तरफ देखकर कहा, तुम इसे अपनी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करो, अगर शेरा कमीनों को मोहलत देने का आदी नहीं है। अजमत बेग ने जवाब देने की खातिर कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन खान दिलावर को जैसे शेरा की इजाज़त ही का इंतज़ार था, और वह बिजली की तरह हवा में कूदा। और फिर उसने अजमत बेग का बाएं हाथ थाम कर कलाबाजी खाई तो अजमत बेग की चीखें आसमान से बातें करने लगी। उसका हाथ शाने से टूट कर लटक गया था, और कलाबाजी के बाद कदम ज़मीन से लगते ही खान दिलावर ने दोबारा जिस्त लगाई, और इस बार उसकी फ्लाइंग किक अजमत के बेग के मुंह पर पड़ी तो खून का फवारा उबल पड़ा। 1-2 दांत भी जड़ छोड़ चुके थे, और खान दिलावर ने तीसरी बार पैंतरा बदला, लेकिन शेरा ने इसे रोक दिया। अजमत बेग, शेरा ने गज कर कहा, और तुम्हारा सूरज गुरूब होने का वक्त आ गया है। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह गुजरो, और उसके बाद तुम्हें कुफारा अदा करने का कोई मौका भी नहीं मुयस्सर आएगा। क्या तुम मेरी आखिरी आरज़ू पूरे करने का अहद करते हो? तुम एक मर्द से बात कर रहे हो, और मर्द कौल का धनी होता है। तो फिर मुझे माफ़ कर दो। और अजमत बेग ने बड़े रिक्कत अमीद आवाज़ में कहा, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और उसकी आंखें शोले उगल रही थी, और बड़ी असराबी कैफियत में दोनों हाथ मल रहा था। हट में मौत का सन्नाटा तारी था, और खान दिलावर की नज़रें शेरा के चेहरे पर जमी हुई थी, और मेरी और राजू की कैफियत भी खान दिलावर से मुख्तलिफ नहीं थी। उस्ताद, खान दिलावर ने होंठ काटते हुए कहा, और तुम इस कम ज़ात को 2 बार आजमा चुके हो, और अब इसके झांसे में मत आना। मुझे हुक्म दो, और मैं इसकी आंतें पेट से बाहर निकाल कर आबी जानवरों के हवाले कर दूं। नहीं। और शेरा ने इस बार ठहरे हुए लहजे में कहा, और मैंने इस हरामी को कॉल दिया है। सांप को दूध पिलाना दानिशमंदी नहीं होती उस्ताद। खान दिलावर तलमला कर बोला, और ये फिर गद्दार है, और हमें डंक मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। राजू। और शेरा ने खान दिलावर की बात नज़रअंदाज करके राजू को मुखातब किया, अजमत बेग को ले जाकर इसके घर के करीब छोड़ा, और मैं तुमसे गद्दारी नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। और अजमत बेग ने दर्द से कराहते हुए कहा, बंद रख अपनी गंदी ज़ुबान। और शेरा ने अजमत बेग को घूर कर नफरत से जवाब दिया, और फिर पलट कर हेड से बाहर आ गया।
میں نے اور خان دلاور نے بھی اس کی پیروی کی، اور مجھے تعجب تھا کہ اگر عظمت بیگ کو معافی کرنا تھا تو پھر اس کو راجو کے ذریعے اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا شیرا نے واقعی اپنا قول پورا کیا تھا، یا پھر وہ عظمت بیگ کو چھوڑ کر کوئی نئی چال چلنے کا پروگرام بنا رہا تھا؟ میں دارالاسلام میں اپنی خوابگاہ میں تنہا لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا، اور ساحلی علاقے سے واپسی پر ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ انسان نے خدا کو دیکھا نہیں، لیکن عقل سے پہچان کر اس کی حقیقت پر ایمان لے آیا، اور شیرا کے اصول چٹانوں کی طرح ٹھوس تھے، اور اس کو نازوں کی کوٹھی پر ہونے والے حادثے سے لے کر میری بازیابی تک ایک ایک لمحے کی اطلاعات ملتی رہی ہوگی، اور وہ میرے زخمی ہونے کی خبر ملتے ہی تڑپ اٹھا ہوگا، اور پھر جب اسے عظمت بیگ کے سلسلے میں اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ وہ قدم قدم پر ہمیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا۔ اور عظمت بیگ پہلو وار شخصیت کا مالک تھا۔ مذہبی حیثیت میں اسے ملک گیر شہرت حاصل تھی، اور لوگ اس کی عقیدت و احترام کرتے، اور وہ اپنی چرب زبانی سے بھولے بالے اور نیک دل عوام کے دلوں کو تسخیر کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی کاروباری حیثیت بھی بڑی مستحکم تھی، اور حکومت کے ساتھ بھی اس نے باقاعدہ ساز باز کر رکھی تھی، اور اپنی ذہانت کی وجہ سے دونوں دھڑوں میں ساکھ جما رکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شیرا کس کینیڈا کا بدماش ہے، اور اس کے چنگل سے نکل جانا ایسا ہی تھا جیسے موت کے منہ سے نکل جانا، اور شیرا نے اس کی ننگی تصویریں اترنے کے بعد اسے رہا کیا تھا، جس نے یقیناً عظمت بیگ کو کم از کم شیرا کا غلام بننے پر مجبور کر دیا تھا، اور شیرا کے آدمی سے بچنے کی خاطر اس نے اپنے حفاظتی انتظامات بھی پہلے سے مقابلے میں اور سخت کروائے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصاویر کا توڑ کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہوگا۔ میری اغوا کے بعد اس نے اچانک اپنی کارروائی تیز کر دی، اور اپنی ساکھ بچانے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن بر وقت اسے پر اسرار آواز نے، جو کئی موقعوں پر شیرا کی مدد کر چکی تھی، کسی طرح گیراج کے مالک غلام حسین کے ذریعے شیرا کے گروہ کے میرے بارے میں آگاہ کر دیا۔ خان دلاور کو میری بازیابی کا حکم دینے کے بعد شیرا نے یقیناً عظمت بیگ کا قصہ پاک کر دینے ہی کی خاطر راجو کو اسے اٹھا لینے کا حکم دیا ہوگا، اور راجو نے زندگی داؤ پر لگا کر عظمت بیگ کو ساحلی علاقے کی اس ہٹ تک پہنچا دیا تھا جو شیرا کی ملکیت تھا۔ لیکن اتنی دھوڑ دھوپ کا نتیجہ کیا نکلا، اور شیرا نے عظمت بیگ کی آخری خواہش پر اسے معاف کر دیا، اور یہ اس کا ذاتی قانون تھا، ورنہ قانون میں بھی ایسی کوئی شک موجود نہیں جس کی بنا پر پھانسی کے مجرم کو صرف اس کی آخری خواہش کی بنا پر معاف کر دیا جائے۔ میں بڑی سنجیدگی سے شیرا کے بارے میں غور کر رہا تھا، اور ہٹ میں عظمت بیگ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو سرخی نمودار ہوئی تھی، وہ اس بات کی ضمانت تھی کہ عظمت بیگ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اور خود شیرا نے بھی اسے کہا تھا کہ تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ لیکن پھر شیرا کا غصہ سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ عظمت بیگ کو آزاد کرنے کے بعد اسے ایک چپ سی لگ گئی۔ آخر کیوں؟ وہ کون سی طاقت تھی اور جس نے شیرا جیسے پتھر دل کو یک دم موم بنا دیا تھا؟ میرے بازو کی تکلیف خاصی کم ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر شبیر نے یقیناً بڑی توجہ سے میری مرہم پٹی کی تھی، اور اس کے دل میں میرے خلاف کوئی زہر، کینہ یا بغض ہوتا تو وہ میرے زخموں کو بگاڑ بھی سکتا تھا۔ اچانک قدموں کی آواز سن کر میں نے نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا تو راجو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ عظمت بیگ کے سلسلے میں تو تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اور میں نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، اور راجو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور پھر بولا، برادر، غیب کے حالات خدا کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کتے کی دم اب سیدھی ہو گئی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ عظمت بیگ کی بات کر رہا ہوں، اور راجو نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ واپسی میں مجھے اپنی خوابگاہ تک لے گیا تھا، اور اس کے محافظوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ اشارہ کر دیتا تو شاید ان کے حصے میں میرے جسم کی 2-4 بوٹیوں سے زیادہ نہ آتیں۔ لیکن عظمت بیگ نے خلاف توقع میری بڑی آؤ بھگت کی، اور اس نے اپنے آدمیوں کو یہی بتایا کہ میں اس کا محسن ہوں۔ راجو مزے لے کر عظمت بیگ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کی تفصیل سناتا رہا، اور وہ چپ ہوا تو میں نے شیرا کے بارے میں ذکر چھیڑ دیا، اور راجو خاموشی سے میری شکل دیکھتا رہا، اور پھر بولا، میں نے استاد کو بہت قریب سے دیکھا ہے برادر، اور اس وقت پورے شہر کے طول و عرض میں اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور وہ ایک اشارہ کر دے تو اس کے قدموں میں دولت کے انبار لگ سکتے ہیں۔
चाकू धनी में इसका कोई सानी नहीं, लेकिन वो उसे भी आखिरी मौके पर आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है और वक़्त और हालात ने उसे मजबूरन गलत रास्ते का मुसाफिर बना दिया है, बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह। वरना उसके जिस्म के अंदर जो इंसान परवरिश पा रहा है वो बड़ा ही नेक और शरीफ है। अजमत बेग को माफ़ कर देने की वजह से मेरी समझ में भी नहीं आ सकी, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी खुदा की कोई मसलहत हो और हो सकता है कि कुदरत उस्ताद की रहनुमाई कर रही हो। खान दिलावर ने मुझे बताया था कि गुलाम हुसैन के ज़रिए मैंने उसे मुखबरी कराई थी। क्या यह हकीकत नहीं? और राजू ने चौंक कर मुझे देखा। नहीं, और मैंने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया, मैंने तो गुलाम हुसैन की शक्ल भी कभी नहीं देखी, और फिर उसी नीली छतरी वाले की मेहरबानी है, राजू ने कहा। और हो सकता है कि वही पुर इस्तारबाज जिसने उस्ताद के सिलसिले में तुमसे काम लिया था और इस बार गुलाम हुसैन के ज़रिए तुम्हारी मदद की हो। और वह किसकी आवाज़ हो सकती है? खुदा ही बेहतर जानता है। और राजू ने सर्द आह भरकर जवाब दिया, और मैं भी इतने अरसे से इसी इमारत के नीचे सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और तुम खुशकिस्मत हो जो तुमने उस मुक़द्दस आवाज़ से ख्वाब में बातें कर ली। हमारे दरमियान इस पुर इस्तारबाज की बातें होती रहीं और शीरा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस हुई और गुरूह के सिलसिले में कुछ इंकशाफ हुए। और फिर अचानक राजू ने मुझे अजीब टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा, बरादर, तुमने अभी तक अपनी नादों के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मुझे यकीन है कि वह जहाँ भी है महफूज हाथों में है। उस यकीन की कोई वजह? अगर उसे कोई ख़तरा होता तो सबसे बेशतर उस्ताद या फिर तुम मुझे उससे ज़रूर आगाह करते। और मैंने इत्मीनान से कहा और फिर बोला, और अब जब नादों का जिक्र आ ही गया है तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ और कि उस गरीब पर क्या गुजरी। और बेहोशी से दो चार होने से बेशतर मैंने आखिरी बार उसकी चीख की आवाज़ सुनी थी। मुराद शाह के ब्रस्ट मारने की वजह से वो खौफजदा होकर चीखी थी। और राजू ने मुस्कुराकर कहा, उसे यकीन था कि हरामकारी की मंडी के व्यापारी उसकी ज़िंदगी का चुराग गुल करके खुद अपने पेट पर लात मारने की हमाकत कभी नहीं करेंगे। और मोटी सी बात है बरादर, इंसान जिस थाली में खाता है उसी में सुराख नहीं करता। नाज़ो इस वक्त कहाँ है? और मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। सॉरी ब्रदर। और राजू यकलक संजीदा हो गया, और इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें उस्ताद ही दे सकता है। और राजू ने मेरे चेहरे के तासरात का जायज़ा लेते हुए कहा, और जब तुम्हारा दिल गवाही दे चुका है कि नाज़ो खैरियत से है तो फिर तुम्हारे अंदर ये अथल पथल क्यों हो रही है? हम जिन हालात में अलहदा हुए थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं? और राजू ने मेरी बात नज़रअंदाज करके सवाल किया। किस बात का? मेरी एक लम्हे की गफलत की वजह से मुराद शाह की कोई गोली। शर्मिंदा मत करो राजू। और मैंने बड़े खलूस से कहा, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर तुमने नाजू को मेरे बारे में खबर ना दी होती और उसने अपनी किसी कनीज़ को मेरी हिफाजत पर मामूर ना किया होता तो शायद मैं उसकी कोठी के अहाते में दाखिल होते ही चौधरी नवाज के शिकारी कुत्तों की गोलियों का निशाना बन चुका होता। इसलिए कहता हूँ बरादर कि एक दम से दो की राय ज़्यादा मुनासिब होती है। और राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर संजीदगी से बोला, अगर तुम मुझसे अपने दिल का हाल बयान किए बगैर चले गए होते तो शायद इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती और मैं तमाम ज़िंदगी उस्ताद को अपना चेहरा दिखाने के काबिल न रहता और ख़ुद मेरा ज़मीर भी आखिरी सांसों तक मुझे मलामत करता रहता। ये और बात है कि उस्ताद उसके बाद चौधरी नवाज के ठिकानों को खंडर बनाने में कोई दकीका फ़रू गुज़ाश्त ना करता और इन तमाम लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देता जिस पर दुश्मन होने का मामूली सा शुबा भी होता। लेकिन तुम्हारी कमी तो फिर भी पूरी नहीं हो सकती थी। राजू, क्या उस्ताद मुझसे वाकई इतना प्यार करता है? और शायद उससे भी ज़्यादा, राजू ने कहा, और तुम उस्ताद की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे। और तुम भी मुझे अपना दोस्त और भाई समझते हो। कहने और कर गुजरने में बड़ा फ़र्क होता है ब्रदर। और राजू ने जज्बाती अंदाज में जवाब दिया, और जब जी में आए आजमा कर देख लेना। अगर तुम सर्दो गर्म का ख्याल करके पीछे हट गए तो। और राजू मेरा जवाब सुनकर चौंका और उसके चेहरे पर यकलख्त करब के तासरात नुमाया हो गए और उससे मुझसे इस बात की तवक्का नहीं थी। वो मेरी निगाहों में झांकने लगा और शायद उससे अपनी कुव्वत इस्मात पर शुबा हो रहा था और कमरे में एक लम्हे तक मौत का सन्नाटा तारी रहा। और फिर राजू ने ठोस लहजे में कहा, सर्द और गर्म का ख्याल वो रखते हैं ब्रदर और जिनको ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश हो। और मैं तो एक मशीन हूँ और जिसका रिमोट कुदरत ने उस्ताद के हाथ में दे रखा है। वक़्त और हालात ने मेरे रास्ते का कांटा ज़रूर बदल दिया है लेकिन मेरा ज़मीर अभी तक ज़िंदा है। आजमाइश सदाकत की कसौटी होती है। और मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा, और क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर सकोगे
تم کہنا کیا چاہتے ہو برادر؟ اور راجو کی آواز فرتے جذبات سے بھر آ گئی۔ اور کیا میری محبت میں کوئی کمی محسوس کی ہے تم نے؟ ہاں، کیا؟ نازو، اور میں نے مسکرا کر ماحول کی آلودگی کو دور کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے دل کی کیفیت سے واقف ہو۔ تمہیں علم ہے کہ نازو کہاں ہے، لیکن تم مجھے اس کا پتہ بتانے سے گریز کر رہے ہو۔ تم سے خدا سمجھے برادر۔ اور راجو نے اطمینان کا سانس لیا، اور میں تو واقعی اندر سے دہل کر رہ گیا تھا۔ چلو اب بتا دو۔ اور میں نے اسے پیار سے دیکھا، اور صبح کا بھولا شام کو بھی گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ٹھہرو، اور میں استاد کو فون کر کے اس کی اجازت لے لوں۔ راجو نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، رہنے دو۔ میں سمجھ گیا کہ نازو کسی محفوظ قلعے میں اطمینان سے ہوگی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دو برادر کہ مراد شاہ کی موت میں میرا اور استاد کا برابر کا ہاتھ شامل ہے۔ راجو نے کہا، اور میں نے نازو کے علاوہ استاد کو بھی بتا دیا تھا کہ تم سر پر کفن باندھ کر اپنی محبت کو آزمانے گئے ہو۔ اس خبر کو سن کر استاد بھنا گیا تھا، اور غصے میں اس نے 2-4 موٹی موٹی چٹکنی بھی دی تھی، اور پھر سارا جوابی آپریشن اسی کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ ہمارے آدمی مراد شاہ اور اس کے گرگوں کو چارپائی کے کھٹبلوں کی طرح گرم پانی سے نتارنے میں مصروف تھے، اور بارود کی خوشبو کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن استاد تمہاری نازو کو اس نشے کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا، اور وہ فوری طور پر اسے اٹھا کر اسے لے کر ٹھائے ٹھو کے ماحول سے دور نکل گیا، اور اس کا خیال تھا کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ استاد نازو کے علاوہ تمہاری حفاظت کا بھی بندوبست کرے گا، اور بس اسی غلط فہمی کا فائدہ اٹھا کر دشمن تمہارے اوپر ہاتھ صاف کر گیا۔ اس سلسلے میں بھی جب استاد کو حالات کا علم ہوا تو اس کی جلاہٹ قابل دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی سب سے عزیز شے سے چھین لی ہو۔ میں استاد کے ان احسانوں کا ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور میں نے خلوص دل سے کہا۔ اور خان دلاور کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ استاد کی نظروں میں جو مقام اسے حاصل ہے کوئی دوسرا اس کا حقدار نہیں بن سکے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ استاد اسے بہت چاہتا ہے، اور خان دلاور نے بھی کئی موقعوں پر استاد کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، لیکن تم نے نہ جانے کس چور دروازے سے نقب لگا کر استاد کے دل پر اپنا تسلط جما لیا۔ اور راجو نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک بات اور بھی ہے، استاد کے دل میں نازو کے لیے بھی ہمیشہ سے ایک نرم گوشہ موجود تھا، اور وہ اسے عزت کا کوئی مقام دینے کا خواہشمند تھا، لیکن کسی مناسب بندے کا انتخاب اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اور تمہارے آ جانے سے جب اسے تمہارے ماضی کی رنگین داستان کا علم ہوا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ استاد کی عمر پر نہ جانا برادر، اس کے اندر ہزاروں پاکیزہ جذبے نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے پرورش پا رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ استاد کسی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویش بن جائے گا۔ ہمارے درمیان شیرا کی نجی زندگی کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں ہوتی رہیں، اور پھر راجو بھی کمر سیدھی کرنے کی خاطر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور مجھے یہ جان کر اطمینان ہو گیا تھا کہ نازو شیرا کے پاس ہے، اور میں بھی آنکھ بند کر کے لیٹ گیا۔ دوسری بار بھی میری پٹی تبدیل کرنے کی خاطر شبیر کو بلایا گیا، اور راجو کی موجودگی میں شبیر نے پوری توجہ سے میرے زخموں کا معائنہ کر کے پٹی باندھنے کے بعد کہا، خدا کا شکر ہے کہ گولی نے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ پٹی اور ہوگی، اور اس کے بعد ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے دیانتداری سے اپنا فرض پورا کیا۔ اور راجو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر ہمیشہ زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور خواہ مریض اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ شبیر نے راجو سے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اور رشید صاحب کا شمار تو میرے موصلوں میں ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ میری قید بامشقت کام آ گئی۔ اور میں نے مسکرا کر کہا، یقیناً۔ اور ڈاکٹر شبیر نے اعتراف کیا، ورنہ آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ راجو کچھ جواب دینا چاہتا تھا کہ شیرا آ گیا، اور خان دلاور بھی اس کے ہمراہ تھا، اور شیرا نے بھی شبیر سے میرے زخم کے بارے میں دریافت کیا۔ راجو نے اتنی دیر میں چائے وغیرہ کا اہتمام کر لیا، اور چائے کے دور پر ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر شبیر کے جانے کے بعد شیرا نے مجھے مخاطب کیا، شہزادے، اور میں اس وقت تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دو استاد۔ اور میں نے سنجیدگی سے کہا، پہلے ایک وعدہ کر۔ اور شیرا نے بڑی سنجیدگی سے بزرگانہ انداز میں کہا، اور جو کچھ میں کہوں گا اس میں ہچر مچر نہیں کرے گا، اور مین میخ نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بس چپ کر کے میری بات مان لے گا۔ استاد، میں نے شکوہ کیا، اور کیا تمہیں اپنے شہزادے پر اعتماد نہیں، یا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ شیرا میرا جواب سن کر خاموش ہو گیا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہے۔
कुछ देर मुकम्मल सकूत तारी रहा और मैं शीरा के चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देख रहा था और वो कोई बहुत ही अहम फैसला सुनाने वाला था। लेकिन जो कुछ वो कहना चाहता था शायद उसके लिए उसे सही और मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। शहजादे और शीरा ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया, मेरे कंधों पर अचानक एक भारी बोझ आन पड़ा है और कुदरत शायद मेरा इम्तहान लेना चाहती है। मेरी ख्वाहिश है कि उस इम्तहान में तू मेरा साथ दे और मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ। तू अगर पीछे हट गया तो ये मेरी पहली हार होगी। तुमने मुझे जीने का सहारा दिया है, सर छुपाने की जगह दी है, बाइज्जत पनाह दी है और फिर मैं एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। बात अदले बदले की नहीं। और शीरा पहलू बदल कर बोला, और मैं तुम पर अपना कोई फ़ैसला भी मुसल्लत नहीं करना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो बात भी हो और दिल की गहराई से हो, ज़बरदस्ती और लिहाज मरवत का सौदा ना हो। तुम कहो तो उस्ताद। और मैंने पूरे एतमाद से कहा, और मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। नाज़रीन मेरे पास है और खुदा का शुक्र है कि दुश्मनों की कोई गोली उसके वजूद को चाट नहीं गई। और मैं चाहता हूँ शहजादे कि तू उसे सच्चे दिल और ईमानदारी से कबूल कर ले, लेकिन इस शर्त पर कि जो गलतियाँ उसके कमज़ोर बाजुओं के बस से बाहर थीं तो उन्हें माफ़ कर देगा। मैं उसे कसूरवार नहीं समझता। और मैंने बेहद संजीदगी से कहा, और उसको शरीक हयात बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। मेरी एक दरख्वास्त और भी है, शीरा ने कहा। और नाज़रीन से 2 बोल पढ़वाने के बाद तो हम सब से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगा। उस्ताद, मैंने एहतजाज करना चाहा, लेकिन शीरा ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं समझता हूँ मेरी जान कि ये शर्त बड़ी कठिन है और गोश्त नाखन से जुदा हो जाए तो तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त होती है और मुझे और मेरे संगी साथियों को भी तुम्हारी जुदाई का गम होगा। लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारी और नाज़रीन की भलाई के लिए है। नाज़रीन जो दुख बर्दाश्त कर चुकी है वही बहुत है और मैं नहीं चाहता कि उसे फिर कोई तकलीफ़ उठाना पड़े। खान दिलावर और राजू भी शीरा की दूसरी शर्त सुनकर कसमसाए थे, लेकिन उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया और शायद उन्हें भी मेरी बेहतरी मंजूर थी। मैं तुम लोगों से बिछड़ कर कहाँ जाऊँगा। और मैंने अपनी कम मायगी का इजहार किया। मेरा मुस्तकबल तो उसी दिन तबाह हो गया था जब कानून के मुहावजे ने मुझे 3 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा का हुक्म सुनाकर एक बाइज्जत सोसाइटी से घसीट कर अलहदा कर दिया था और मेरे पास सर छुपाने का कोई अपना ठिकाना भी नहीं। और मैं नाजों को साथ लिए कहाँ दर बदर की खाक छानता फिरूंगा। ऐसे दिल फटने की बातें मत करो शहजादे। और शीरा ने बड़े जज्बाती अंदाज में जवाब दिया, और तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है रे, और मेरे होते हुए तुझे किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं नाज़रीन को खाली हाथ अपने घर से रुखसत करूँगा। सब कुछ बड़े धूम धड़के से होगा उस्ताद। और खान दिलावर ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, और हम अपने लाडले की शादी पर दिल के सारे अरमान पूरे करेंगे और ऐसा जश्न करेंगे कि पूरा शहर देखे। हम अपने सारे ठिकानों पर खालस घी के चिराग जलाएंगे। और राजू मेरी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर बोला, और ब्रादर की शादी पर मैं दिल खोल कर नाचूंगा और धूम जमा का ताक दन होगी। नहीं। और शीरा ने कुछ सोच कर होंठ चबाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन और शीदे की रस्मों निकाह बिल्कुल बड़ी सादगी और खामोशी से होगी और मैं गिनती के चंद आदमियों के अलावा किसी और को दावत नहीं दूंगा और रुखसती भी खामोशी से होगी। ये तो जुल्म होगा उस्ताद। और खान दिलावर ने आवाज़ बुलंद की, बगैर शोर शराबे और ठाएं ठोके क्या खाक मज़ा आएगा। और फिर हम कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो। और यही तो एक मौका आएगा जब हम फजूल बातें कम किया कर। और शीरा ने खान दिलावर की बात काटी तो राजू भी हाथ मसल कर रह गया। मुझे एक बार फिर अपनी और नाजों की बेबसी का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। और शीरा ने हमारी शादी पर धूम धड़के के खिलाफ नहीं था, लेकिन वो मसलतन हंगामे बर्पा नहीं करना चाहता था, इसलिए कि नाज़रीन के परस्तारों की शहर में कोई कमी नहीं थी। और असलम डंका और उसके साथी वक्ती तौर पर पिस्पा ज़रूर हो गए थे, लेकिन वो आसानी से नाज़रीन के हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते थे। और जिसको एक बार हराम खाने की आदत पड़ जाए वो काम धंधे से कतराने लगता है। और नाज़रीन तो उनके लिए लक्ष्मी थी। शीरा नहीं चाहता था कि असलम डंका के साथी और नाज़रीन के परस्तार हमारे दुश्मन बन जाएं, और उसकी सोच गलत नहीं थी। तू क्या सोचने लगा शहजादे। और शीरा ने मेरे चेहरे को किसी खुली किताब की तरह पढ़ते हुए कहा, और फिर जल्दी से बात बनाकर बोला, दिल छोटा क्यों करता है। और मैंने तुझे भी अपना कहा है, अपना समझा है, और तुम लोगों के सिवा और कौन है मेरा। और मैं तुम्हारे ख्याल नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और शीरा ने लंबी सांस भरकर बात आगे बढ़ाई,
मैं तुझे इतनी रकम आसानी से दे सकता हूँ कि तू अपना कोई आशियाना खरीद सके, और इस शहर में अपने कई ठिकाने हैं। तू चाहे तो उनमें से भी कोई पसंद कर ले, लेकिन मेरा मशवरा है कि तू उस शहर को ठोकर मारकर और किसी जगह जाकर अपना घर बसा ले, और यहाँ रहेगा तो तेरे जख्म रसते रहेंगे। रात चलते गलियों के कुत्ते भी भौंकते रहेंगे। और क्या धरा है यहाँ, रोशनियाँ, रत जगह और खाली दिखावे की टीम टाम। नौकरी करने में भी अब वो पहले जैसी इज्जत नहीं रही, और दूसरों की चमचागिरी करते रहो तो दाल रोटी मुश्किल से चलती है, और अगर बड़े साहब की पेशानी पर बल आ गया तो इधर उधर धक्के खाते फिरो। मैं तो कहता हूँ किसी छोटे से शहर या गांव में जाकर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार जमा ले, और 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी मिलती रहेगी, और किसी साले की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे नाज नींद से बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं, और वह हर हाल में तेरे साथ खुश रहेगी, और ज़िंदगी गुजारने की खतर और क्या चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो उस्ताद, लेकिन वहाँ तुम सब तो नहीं होगे। और मैंने उदास लहजे में कहा, और मैं तुम लोगों में कमंद कर रह गया हूँ, और तुमसे कट कर कैसे रह सकूँगा। पहले भी तो अकेला ही था ना। और शीरा ने मुझे समझाने की कोशिश की, अगर किस्मत में गर्दिश ना होती तो आज तू भी किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टर लगा होता, और ये तो बस एक इत्तेफाक था कि हमारा टकराव हो गया। मंजिल की राह में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं, और इंसान अगर एक जगह रुक कर बैठ जाए तो फिर ज़िंदगी की गाड़ी ठप हो जाएगी। और सफ़र में मुसाफिर मिलते हैं, और 2 घड़ी मिल बैठ कर गमे गलत करते हैं, और फिर सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। तू इस वक्त जहाँ है और ये सोच तेरी मंजिल तो नहीं। और शीरा ने जोर देकर कहा, और फिर नाज़रीन की ज़िंदगी का सवाल भी है। उसने तेरी खातर जितने पापड़ बेले हैं और वही बहुत है, और वो औरत होकर अपना फ़र्ज निभा चुकी है। अब तेरी बारी है शहजादे। यारी दोस्ती और रिश्ते नाते तो चलते रहते हैं, और फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे भूल जाएंगे। तू तो खुशबू बनकर हमारी ज़िंदगी में रच बच गया है, और हम तुझसे मिलते जुलते रहेंगे। उस्ताद ठीक कह रहा है ब्रादर। और राजू ने अपने दिल पर जबल करके शीरा की बात की तायद की। तुम अपना घर बसा लोगे तो हम भी भाभी वाले बन जाएंगे, और तुम्हारे घर मेहमान बनकर टपकते रहेंगे। लेकिन एक बात का खतरा भी है। वो क्या? तुम 2-4 मासूम और प्यारे प्यारे बच्चों के बाप बन जाओगे, तो शायद अपनी दुनिया में मगन होकर। आगे कुछ ना कहना राजू। और मैंने भर्राई हुई आवाज़ में राजू को टोक दिया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम सब मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन मुझे इतना कम ज़रफ़ भी ना समझो कि मैं तुम सब की मोहब्बत को भूल सकता हूँ।